Good morning, friends. Today I am going to start the new important question in class 12 physics. Wheaton bridge. You see in this figure, it's called the Wheaton bridge. It's prepared by the Charles Wheaton, and using this circuit is called the Wheaton bridge. And using this formula, we can find out the unknown resistance. तो स्टूडेंट्स ये आपके प्रैक्टिकल भी है और बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है बच्चों। कई बार सीबीएसई के एग्ज़ाम में, जीएससीबी के एग्ज़ाम में और बाकी स्टेट के एग्ज़ाम में आ चुका है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस सर्किट इज प्रिपेयर्ड बाय द चार्ल्स व्हीटन एंड इज लाइक द ब्रिज बिकॉज द 2 पॉइंट आर joining each other is called the bridge. तो here we start this question. तो let's consider ये A, B, C and D. There are 4 resistors in the Wheaton bridge: R1, R2, R3 and R4. There are 4 resistors. Here a V volt battery is connected between the A and the C terminal of Wheaton bridge is called the battery arms. A sensitive galvanometer which detects the current is called the galvanometer, and its connect between the B and the D is called the galvanometer arms. Galvanometer is connect between the B and the D is called the galvanometer arms. Now here there are 4 resistors, and out of 4 we select the 3 resistors in such way that current flowing through the galvanometer is 0. यहाँ 4 रेजिस्टेंस है तो 4 में से 3 ऐसे सेट किए जाते हैं कि गैल्वेनोमीटर से जो पास होने वाला जो करंट है वो 0 हो जाए, करंट 0 हो जाए. सच कंडीशन इज कॉल्ड द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटन ब्रिज. बैलेंस कंडीशन ऑफ द व्हीटन ब्रिज. अब नाउ अ करंट इज फ्लोइंग हियर, सो इट्स डिनोटेड बाय I. नाउ एट दिस पॉइंट इज द जंक्शन and is divided into 2 parts, I1 and I2. Now here current I1 flow through the R1. At this point here the current is 0 because the Wheaton bridge balance condition. Now here the same current is flowing through the B and the C. So also here the current flowing is the I1 in this direction. Now similarly I2 current is flowing this way. Current here the 0 galvanometer, so I2 is flowing through the resistor R4. Now here at the point C, I1 and I2 are meet each other and is form a I, and so total current is reached at the negative terminal. So now this is the formula circuit of the Wheaton bridge. Now here we applying the Kirchhoff second law. तो for the closed circuit, तो मैं ये closed circuit को apply करता हूँ. तो this, so applying Kirchhoff सेकंड लॉ. कई लोग इसको बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL. कई लोग ऐसे भी बोलते हैं KV और L, किरचॉफ वोल्टेज लॉ. तो फ्रेंड्स यहां से मैं लगा दूं तो मैं यहां जाऊंगा तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो करंट इनटू रेजिस्टेंस. तो करंट की डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं तो कंसीडर द नेगेटिव. तो हियर वी राइट द माइनस I1 R1. मैं यू जा रहा हूं. अब यहां से तो करंट 0 है तो लिखेंगे नहीं. यहां से मैं D से अब ये जा रहा हूं तो मैं यू जा रहा हूं तो करंट मेरे सामने आ रहा है तो प्लस I2 R2 इज इक्वल टू वापस आ गए 0. बच्चों मैं फिर से बता रहा हूं, हम अप्लाइंग कर रहे हैं किरचॉफ सेकंड लॉ. I1 R1 मैं इस तरफ जा रहा हूं और करंट मेरे साथ आ रहा है तो माइनस. अब यहां से कोई करंट नहीं फ्लो रहा मतलब 0. अब यहां से मैं इस तरफ जा रहा हूं, करंट मेरे सामने है मतलब प्लस. अब नाउ हियर द सिंप्लीफिकेशन, इसको उस तरफ ले लेते हैं तो I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली अ क्लोज सर्किट B, C, D and D. So for क्लोज सर्किट, ये हमने कौन सी क्लोज सर्किट ले ली? क्लोज सर्किट पहले में मैंने ली थी A, B, D और A. अब लेते हैं क्लोज लूप भी बोलते हैं. क्लोज सर्किट मैं लूंगा B, C, D और B. अप्लाइंग द किरचॉफ वोल्टेज लॉ.
तो यहाँ हम करंट की बात करते हैं, तो मैं यू जा रहा हूँ और करंट मेरे साथ आ रहा है, तो -I1 R3 ये आया। अब सामने करंट आ रहा है तो +I2 R4। यहाँ जाएंगे तो करंट क्या है, मतलब 0 है गैलोमीटर से, तो वापस वहाँ आ गए, क्या होगा 0। तो हियर I1 R3 is equal to I2 R4 is called the equation number 2. Now using the equation number 1 and 2, तो मैं इक्वेशन 1 और 2 को मतलब दोनों का रेशियो ले लेते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2, so I1 R1 upon I1 R3 is equal to I2 R2 upon I2 R4. So therefore R1 upon R3 is equal to R2 upon R4। ये हमारा एक फॉर्मूला है। तो यहाँ मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर देता हूँ, इन दोनों को मैं इंटरचेंज करता हूँ, तो मैं लिख सकूँगा R1 अपॉन R3। तो मैं ऐसा लिखता हूँ दोनों को, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। और दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हिस्टन ब्रिज। नाउ फ्रेंड्स मैं स्पीड में ये आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। एज शो इन द फिगर, व्हिस्टन ब्रिज, व्हिस्टन अ ब्रिज सर्किट इज गिवन। यह दोनों व्हिस्टन ये पूरा एक ही वर्ड है। चार्ल्स व्हिस्टन प्रिपेयर दिस सर्किट इज कॉल्ड द व्हिस्टन ब्रिज। There are 4 resistors R1, R2, R3 and R4 in the Whiston bridge. A V volt battery is connected between the A and the C point is called the battery amps. A sensitive galvanometer which measure the current, which indicate the current, it's connect between the B and the D is called the galvanometer amps. There are 4 resistors R in a Whiston bridge. So out of 4, 3 resistors are select in such way that current passing through the galvanometer is 0. Such condition of the galvanometer is called the balance condition of galvanometer. And now we applying the ABDA circuit. Kirchhoff second law, KVL means Kirchhoff volt law. तो फ्रेंड्स मैं लिखूंगा -I1 R1 प्लस I2 R2 इज इक्वल 0। सो टेक इन द RHS साइड, सो R1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, equation 1. Now the another closed circuit B, C, D and B. So -I1 R3 plus I2 R4. Now here the taking in the RHS side. So therefore from equation number 1 and 2 this part cut. Up near this part is interchange each other. So R1 upon R2 and R3 upon R4. R1 upon R2 is equal to R3 upon R4. तो यूजिंग इन दिस फॉर्मूला, तो अगर हम इस फॉर्मूले में 4 रेजिस्टेंस है, अगर इसमें से हम 3 जानते होंगे तो चौथा अपने आप मिल जाएगा। तो सपोज आपको R3, R4 और R2 मिल गए हो तो R1 आप मेजर कर सकते हैं। तो यूजिंग द व्हिस्टन ब्रिज वी कैन फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस। तो दिस इज द यूज ऑफ द व्हिस्टन ब्रिज। बट इन द प्रैक्टिकल पर्पज सम चेंज इन द व्हिस्टन ब्रिज, हमारा आंसर यह खत्म हो जाता है। पर प्रैक्टिकल पर्पज के लिए हम ऐसा करते हैं कि व्हिस्टन ब्रिज जो है उसमें थोड़ा सा हम चेंज कर दें और चेंज करके एक नई सर्किट बनाते हैं, उसको बोलते हैं मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज की मैं बात करता हूँ। तो मीटर ब्रिज क्या है, तो मैं सिंपल आपको बता देता हूँ। मैं पहले फिगर ड्रॉ कर देता हूँ जिससे हमारा वीडियो थोड़ा लंबा ना हो और छोटा वीडियो बने, इसलिए मैं See friend, in the figure meter bridge is given. Some change in the Whiston bridge, it's called the meter bridge. तो जो R1 और R2 हमारे रेजिस्टेंस थे, तो ये R1 था तो इसको हमने R कह दिया, ये R2 था तो हमने व्हिस्टन ब्रिज में ये R2 लिया S। अब यहाँ फ्रेंड्स ये L1 और L2, तो यहाँ बच्चों ये जो आप देख सकते हैं तो वो स्टील के स्ट्रैप्स होते हैं, मतलब स्टील की हम बोल सकते हैं कि एक हम लगाए होते हैं, पट्टी लगाई होती है। अब यहाँ फ्रेंड्स एक मीटर स्केल होती है, तो यहाँ जो मीटर स्केल लगाई होती है तो वो 100 सेंटीमीटर की होती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं मीटर ब्रिज। अब यहाँ हम गैलोमीटर लगाते हैं और ये हमारा L1 और L2। अब यहाँ फ्रेंड्स मैंने एक वायर से गैलोमीटर लगाए और गैलोमीटर के साथ एक जेके जिसको बोलते हैं जॉकी की
अब ये मेरे पास पेन है, ऐसे एक जॉकी की आती है, उसको यहाँ लगाया। अब मैं इसको पर यहाँ टच करूँगा तो गैलेट ऑफ फुट डिफ्लेक्शन बताएगा। अब फिर मैं इसको स्लाइडिंग करूँगा तो मान लो ये डी पॉइंट पर गैलेट ऑफ 0 डिफ्लेक्शन बता रहा है, तो ये मेरा L1। तो ये सपोज मान लो कि 40 आया, तो ये पूरा 100 है, तो ये कितना होगा, तो ये L2। तो L2 आप लिख सकते हैं 100 माइनस L1, तो पूरा 100 ये 40 आते हैं, क्या होगा 60। तो हमें अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना, तो मान लो मुझे ये फाइंड करना है, तो जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो उसके अंदर आपको ये वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ ये नॉन होता है, ये कोई भी वैल्यू होगा 5 ओम, तो यहाँ ये R1, ये R2 और अपॉन L1 अपॉन L2। तो यहाँ से आप ऐसा लिख सकते हैं कि R1 इज इक्वल टू R2 L1 अपॉन L2। तो इस फॉर्मूले से हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ इसका फॉर्मूला ऐसा आता है कि R इज इक्वल टू R1 या R2 L1 अपॉन L2। अब ये जो फॉर्मूला है, तो ये R मतलब क्या, तो R1 अननोन रेजिस्टेंस, तो ये वैल्यू हमें फाइंड करनी हो। S मतलब ये हम कई बार 5, 10 ऐसे कुछ लेते हैं, मान लो ये 5 लिया है, ये L1 और L2 की वैल्यू आप इसमें डाल देंगे तो वी कैन फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस। सो मीटर ब्रिज इज दैट इज द फॉर्म ऑफ द वेस्टर्न ब्रिज, सम चेंज in the western bridge is called the meter bridge, and we can find out the unknown resistance using the meter bridge. So formula this is a practical of second in your book. तो यह फ्रेंड्स हम वेस्टर्न ब्रिज को समझे। यह फ्रेंड्स ये वेस्टर्न ब्रिज का जो प्रैक्टिकल है वो एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है, और यह वेस्टर्न ब्रिज बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ उसके रिलेटेड फॉर्मूले जी और नीट में भी आते हैं। तो उसके फॉर्मूले बच्चों, इसके एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, पर अभी के लिए बच्चों इतना ही। बने रहिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।